ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج جناب انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے قوم کو خوشخبری دی ہے کہ 5 سال کی قیمتوں کے مقابلے پر آج اتنا پیچھے ہم چلے گئے ہیں کہ جی اتنی ترقی ہم نے کر لی ہے کہ قیمتیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ میں نے اسٹیٹسٹکس جمع کیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹکس سے، تو وہ کچھ اور بول رہے ہیں، ان کی کہانی کچھ اور ہے، حکومت کی کہانی کچھ اور ہے۔ جیسا کہ 3 دن پہلے حکومت نے اسلام آباد کا ایک نیریٹو ڈیولپ کیا اور اس پر پی ٹی آئی کے چیئرمین نے یہ کہا کہ گولی کیوں چلائی، کس نے چلائی، یہ تو اسرٹین کرنا پڑے گا نا۔ اب ہم لوگوں کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا، خواہ وہ ادارے ہوں، حکومت وقت ہو، اپوزیشن ہو، پارلیمنٹ ہو، اسپیکرز ہوں، اور انسٹیٹیوشنز لائک ڈمی اور فیبریکیٹڈ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، جس میں سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں کیا۔ یہ تو کیملا ہیرس کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کو فون کرتی اور ان کو کہتی کہ جناب ہمارے یہاں دھاندلی کر کے ٹرمپ صاحب جیت گئے، ہماری مدد فرمائیں، جیسا کہ آپ نے عمران کو ہرایا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کو ہرا دیا جائے۔ یہ تو آپ کی ریپوٹیشن ہے۔ تو آج عطا تارڑ صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر قیمتیں جو ہیں 5 سال پیچھے کی سطح پر آ گئی ہیں، تو ایک تقابل ہو جائے، مقابلہ ہو جائے۔ صورتحال میں عوام کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر گوشت، سبزی، دالیں، گھی، چینی، تیل سب خریدتے ہیں، دودھ، ڈبل روٹی، اور جن علاقوں میں ڈبل روٹی نہیں کھائی جاتی وہاں پہ آٹے پراٹھے میں ظاہر گھی ڈالا جاتا ہے، کوئی اس کے اندر پانی سے تو پراٹھے نہیں تلے جاتے۔ یا پاکستان کی حکومت کی کوشش ہے کہ قوم جو ہے تھوک سے پکوڑے تلے۔ گل سمجھ آ رہی ہے جی میری؟ تو میں عرض کر دوں آپ سے 2020 سے 2024 کا تقابل آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ آٹا کیا بھاؤ تھا اس وقت؟ روٹی کتنے کی تھی؟ 8 روپے، 7 روپے 8 روپے کی پتیلی روٹی ملتی تھی، کہیں بھی چلے جائیں، سادہ روٹی تندور کی۔ اور اس کے بعد یہ نان بائی اور آٹا اور آٹے کا کرائسس اور حکومت وقت اور حکومت کے کرتا دھرتا کارندے اور ان کے پارلیمنٹیرینز اور سیاستدان اور مالکان، فلاور ملز کے مالکان، آٹے ملے کے مالکان، چکیوں کے مالکان۔ کیا ہوا؟ آج آپ کے سامنے ہے۔ آج آٹے کا ریٹ کتنا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ روٹی 20 روپے کی ہے، اور جس کو یہاں شہروں میں سفید روٹی کہتے ہیں وہ 25 روپے تک کی ہے۔ نان 20 روپے کا، 25 روپے کا چل رہا ہے۔ اور اگر آپ نے دودھ والی روٹی خریدنی ہے 40 روپے کی، شیر مال خریدنا ہے تو 60 سے 70 روپے کا۔ شیر مال کراچی اور لاہور میں دستیاب ہوتا ہے۔ یہ ایک اسپیشل روٹی ہے سرخ رنگ کی، جو دودھ اور گھی وغیرہ میں پکائی جاتی ہے، تھوڑی سی چینی ڈالی جاتی ہے اس میں۔ تو یہ تو ہے جناب علی آٹے کا اور روٹی کا ریٹ، میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا ہے۔ گھی پر آ جائیں، 250 360 روپے کا گھی تھا آج سے 5 سال پہلے، جو آج 545 روپے یا 500 روپے ہے فی کلو فی سیر، اور اس میں بھی 45% ڈیوٹی ہے۔ یہ تو حکومت کی معاشی کارکردگی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہیں جائیے گا نہیں، یہیں رہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے کہا نا، ان کو تو ایک پرچہ تھما دیا گیا کہ جناب جائیں اور پڑھ ڈالیں آپ، اور وہ پرچہ تو ظاہر ہے وزیر خزانہ یا اقتصادی امور کے وزیر یا وزیر اعظم ہاؤس سے ملا ہوگا۔ جاؤ جی تسی پریس کانفرنس کر لو، لوگوں کو دسو کہ جی اب مہنگائی بہت زبردست کم ہوگی، انفلیشن جو ہے وہ 7% سے بھی کم آ گیا۔ کیا ہوا ایسا؟ عوام الناس فیصلہ کریں اس کے بارے میں۔ یہ جو تقابل دے رہا ہوں میں آپ کو عمران خان کی جاتی ہوئی حکومت کے حوالے سے، اسی پیریڈ کی بات ہے جس وقت ان کی حکومت کو ڈسلوج کیا گیا تھا۔ چینی پر آ جائیں، 98 روپے کے جی تھی، آج 140 روپے، 140 روپے، 135 140 165۔ 3 مختلف ورائٹی کی، برازیل کی چینی بھی ہے، پاکستانی چینی بھی ہے، موٹے دانے کی بھی چینی ہے، باریک دانے کی چینی ہے۔ اس پہ تو گڑ نہیں ملتا، گڑ بھی 160 170 اور شہروں میں 200 روپے کلو ہے۔ چینی کی قیمت میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آ جائیں دال چنا، 2020-21 میں 170 روپے تھا، آج 350 روپے، 375 روپے چنے کی دال ہے، چھولیاں دی دال جو عام طور پہ کھائی جاتی ہے ہوٹلوں میں، ماش کی دال، چنے کی دال وغیرہ۔ تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ڈبل کی قیمت 170 350، ڈبل سے زیادہ قیمت ہو چکی ہوئی ہے۔ مونگ کی دال 400 سے 450 روپے آج کا ریٹ ہے، اور اس وقت تھا 360 روپیہ۔ 36,500 روپے تھا، 365 روپیہ بنتا ہے 100 کے جی ہول سیل پرائس۔ ریٹیل میں آپ کو پتہ ہے کیا صورت حال ہے۔ دال ماش 550 570 روپیہ فی کے جی، اس وقت کتنا تھا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، 400 روپے، 375۔ ایسا کیوں ہے؟
मैं बताऊंगा आपको इसके असबाब के, महंगाई के असबाब के खुद हुकूमत ज़िम्मेदार कैसे, चारों सूबाई हुकूमतें क्यों कर ज़िम्मेदार हैं। अब आप आगे आ जाइए। चिकन आज का रेट है 736 रुपये, 700 से 736 रुपये फ़ी किलो। और लाहौर का रेट है बोनलेस, ये मैं बोनलेस बता रहा हूँ, और वैसे रेट जो है ना 450, 500 रुपया था आज से 4 साल पहले। आटा 55 से 60 रुपये केजी था, और अब 140 से 155 रुपया। और वो आटा भी वो जिसमें चोकर जो है वो 17, 16, 15% नहीं है, उसमें तकरीबन 30% चोकर है। रोटी पकाएं 2 घंटे के बाद उसके अंदर पानी आ जाता है, बदबू आने लग जाती है। यूक्रेन का गंदा आटा जो खिलाया जा रहा है शहरों के अंदर, और जो अपनी गंदम है पाकिस्तानी गंदम देसी है वो बहुत महंगी मिलती है, और उसका आटा जो है वो हर एक को दस्तियाब नहीं है, मिलावट है। चोकर मतलब भूसी टुकड़े वाला आता है नहीं जी गलियों में, वो भैंसों को कम खिलाया जाता है, वापस इंसानों को खिला दिया जाता है। ये तो 5 बड़े आइटम मैंने आपकी खिदमत पेश कर दिए। पेट्रोलियम प्राइसेस आपके सामने है, पेट्रोलियम प्राइसेस पर कितना टैक्स है ये भी आपके सामने है, कितना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो भी आपके सामने है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। बिजली की क्या ज़रूरत हाल है, वर्ल्ड बैंक जी IMF कह रही है कि जी 55% से ज़्यादा बढ़ाएं, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, बिजली के बिल कहाँ से देंगे। तो ये वो सूरत हाल है। याद होगा आपको 1982-84 के अंदर जनरल ज़िया की डिक्टेटर की हुकूमत थी, उस दौरान में एक चारों सूबों में ब्यूरो ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाइज कायम किए गए थे, और सूबाई हुकूमतों के अंडर थे। उनका काम था कि सप्लाइज को देखें, यानी रसद, डिमांड के मुकाबले में रसद, यानी अगर डिमांड ज़्यादा है तो रसद को बढ़ाया जाता है, और अगर रसद ऑलरेडी है तो प्राइसेस बढ़ती नहीं है, प्राइसेस स्टेबल होती हैं, कम हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मौसमी कोई फल या सब्ज़ी आती है तो चूँकि सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसके रेट कम हो जाते हैं, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है सप्लाईज रुक जाती हैं या कम हो जाती है, तो उससे प्राइस बढ़ जाती है डिमांड की वजह से, सप्लाई की वजह से। वो ब्यूरो ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज सूबाई हुकूमतों के तहत होते थे। कराची में, लाहौर शहर में, इस्लामाबाद, पिंडी में, पेशावर, कोयटा में, आप चले जाएँ बड़े शहरों में, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, ये वो बड़े इलाके हैं, रावलपिंडी, सरगोदा, जिसमें कीमतों का अंदाज़ा आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। सार्फिन को कहीं से रिलीफ नहीं है। वजह क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में करप्शन है, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में जाता है, उनको प्रोटोकॉल है, मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल है, MNAs MPs का है। तो अगर 2020 का इमरान खान की हुकूमत में अगर ये कहा जाए कि उस वक्त की प्राइसेस बहुत थी, तो वो उससे पीछे 4 साल पुरानी की कीमतें हो सकती हैं। लेकिन अब जो हुकूमत ये चल रही है, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूंड अपने ऊपर चढ़ा लिए हैं। ये जो काले और पीले भूंड है ना, यही इस पर चिपक जाएंगे। अभी तो वो इस्लामाबाद के नैरेटिव को काबू नहीं कर पा रहे। इस्लामाबाद का नैरेटिव खुद इन्हीं के गले पड़ गया है कि उसको कैदी नंबर 804 ने कहा है कि जनाब दुनिया भर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट इंटरनेशनल्स, ह्यूमन राइट्स वॉच, तमाम अदारों के पास आप अप्रोच करें। बेशक अगर 100 बंदे नहीं मरे, 50 मरे हैं, ये भी अच्छी सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान के लिए, बदनामी का बायस है। और ये जो पारा चिनार में हुआ है, ये जो 100 से ज़्यादा बंदे शहीद हो गए, इसका कौन हिसाब देगा? इसमें भी शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं। तो भाई मुसलसल किलिंग्स हो रही हैं इस मुल्क में। आप एक बंदे की पकड़ कर बैठे हुए हैं उसके कि भाई ठीक है यार, इसको नहीं जाने देना हमने कहीं भी, सारे केसेस इसी पे बनाने हैं, सारी फैब्रिकेशन, इंजीनियरिंग, मैसिनेशन वही होगी। और आप ये नहीं देख रहे कि जी एक अल्लाह की लाठी भी है, और फिर दुनिया में वो जो कुछ बंदा करता है उसको दुनिया में देख कर दुनिया से जाता है। ये मुमकिन ही है, सरकार सल्लल्लाहु का फरमान है, जो किया है वो देख कर जाएगा। इसी का मफहूम यही बनता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इस दुनिया में करें और आगे तो चले जाएं, आगे तो अज़ाब और सवाब होगा, लेकिन दुनिया में जो कुछ भी किया है उसका अज़ाब और सवाब झेलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आप माँ बाप के साथ ज़्यादती करते हैं, आपके सामने आपकी औलाद करेगी। तो ये अजीब व गरीब एक मैकेनिज़्म है रब कायनात का। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो भी सिचुएशन है वो आपके सामने है। तो प्राइसेस, इन्फ्लेशन, मैनेजमेंट, गवर्नेंस हर तरह से फेल है। और ये कहना कि जी हम 5 साल पहले के मुकाबले पे
عوام مسلسل सरकारी मीडिया और प्राइवेट मीडिया ड्रम बीटिंग कर रहा है, वो पैसे आ रहे हैं ना जी, कैंपेन चल रही है। नवंबर की ये जो 26-27 नवंबर में जो किलिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद में, हाँ वो 2 किलिंग हुई है, 5 हुई हैं, 10 हुई हैं, 15 हुई है, किसी की भी हुई है, पाकिस्तानी शहरी थे वो, हाँ वो यूनिफॉर्म में थे, बगैर यूनिफॉर्म में थे। मतीउल्लाह जान ने तो भाड़ा फोड़ दिया ना इनका, फैरोज हुसैन ने भी भाड़ा फोड़ दिया, और हामिद भीर ने भी अच्छी खासा भाड़ा फोड़ दी, जो इस्लामाबाद में मौजूद है, सिद्दीक जान एंड राना उज़ैर एंड कंपनी, दूसरे करामत मुग़ल वगैरह, ये वो बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तो नैरेटिव हैज़ चेंज इन द सेंस कि आईटी ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसमें हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था, चाहिए है नहीं, चाहिए था, अब तो ये इस काबिल ही नहीं है कि उसको चला सकें। एक खातून आईटी की मिनिस्टर, वो भी ख्वाजा आसिफ की भांजी वगैरह रखती, घर के अंदर अंडा बांटे, रेवड़ी अपनों को दे, ये तो सलाहियत है पूरी कैबिनेट के अंदर। मैंने आप जैसे आपको अर्ज़ किया, एक प्रोफेसर साहब है जो प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर लिखते हैं, उनकी काबिलियत आपके सामने है। औरंगज़ेब साहब हैं, वो टेक्नोक्रेट है, वो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, वो हैंड्स अप कि जी मेरे पास दी गल नहीं। तो ये वो मसाइल हैं जो पाकिस्तान के अवाम के मुक़द्दर में शायद लिखे जा चुके हैं, और यही सियासतदानों ने, इन्हीं नाहल सियासत ने, नाहल लीडरों ने ये इकॉनमी को बिठा दिया हुआ है, और मुसलसल कर्ज लिए जा रहे हैं। डेट सर्विसिंग में कितना पैसा जा रहा है, ये एक अलग स्टोरी है, मैं इंशाल्लाह वक्त आने पर आपकी खिदमत पेश करूँगा। तो आज का नैरेटिव ये जो पेश किया था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, वो मैं उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था कि इसकी तरदीद कर दी जाए और अवाम को हक़ाइक़ उनके सामने आदाद व शुमार के ज़रिए पेश कर दी जाए। इंटरेस्ट रेट आपके सामने है, और स्टॉक एक्सचेंज की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। भाई इंटरेस्ट रेट आपने डाउन किया, डाइवर्जन होगी इन्वेस्टमेंट के, लोग उधर चले गए। कैसीनो है, जुआ खेला जा रहा है दबा कर। ये कह देना कि जी आज थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, मैं देखता हूँ स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी होती है, सारे इकॉनमीज देखेंगे कहाँ खड़ी होती है इकॉनमीज। तो जनाब ये सब फैब्रिकेशन है, आदाद शुमार की जादूगरी है। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हिस्सा डालिए इसके अंदर अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।